everyone, welcome to Unacademy Legal World with me, Ayushi Rajput, your Unacademy CLAT educator. So today we are going to talk about Kriti P. Behta School of Law, which is basically Narsi Munji, Mumbai. Now, obviously it's in Mumbai, and that makes things really exciting for us. However, there are a lot of caveats, a lot of detailed info that you do need to know before you make a decision about the particular institution. And then obviously by the end of the video I will tell you what I think about the college and whether it's worth going to this particular institute or not. However, why are we talking about this institute in the first place? Because it's a decent college, and because you can't pin all of your hopes on CLAT, right? So it's just this one examination, and like any other competitive examination, things can go in any direction. We have no way of predicting it. Obviously अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो yes तुम्हारा क्लैट क्लियर हो जाएगा, काफ़ी हाई चांसेस हैं इस बात के, बट स्टिल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो हम अपना सारा का सारा होप बस एक एग्जाम से या एक कुछ NLU से लगा के नहीं रख सकते. वी हैव टू बी रेडी फॉर बैकअप ऑप्शंस, वी हैव टू बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज जहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई चला जाए, या हमें हमारी मर्जी की रैंक या हमारी मर्जी का NLU ना मिले. So with that particular thing in mind, this college comes as a good backup option. लेकिन how good or how bad, ये सारी चीज़ें तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएंगी. So make sure you are subscribing to the channel and liking the video, and please do let me know what is the next college that you want me to come up with. So this is basically we are trying to do for you, that we will give you as much information on as many colleges and 100% honest reviews, so that you can take a very smart decision with respect to your studies further. Chaliye, so without further ado, let's just move on. So yes, today we are talking about Kriti P. Mehta School of Law, and this looks like a very beautiful building, to be honest. I mean, like, वाओ ओके, बट ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर एंगल से ली गई पर्टिकुलर पिक्चर है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ फेक. दिस इज़ ऑब्वियसली रियल एंड दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट अबाउट इट. तो पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है कि ये ऐसा कॉलेज है जो कि एक्सक्लूसिवली लॉ पे फोकस नहीं करता है. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स और काफ़ी सारे फैकल्टीज़ हैं, एंड आपको पता ही होगा दैट नारसी मुंजी इज स्पेसिफिकली नोन फॉर देयर MBA प्रोग्राम, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट प्रेस्टिजियस. नाउ द लॉ प्रोग्राम इज़ ऑल्सो डिसेंटली गुड, लेकिन जैसे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऐसे ही एक लीगल डिपार्टमेंट है. तो इस बड़ी सी बिल्डिंग का एक फ्लोर जो है वो लॉ डिपार्टमेंट का है. तो अगर आप सोच रहे हो कि ये पूरा का पूरा कैंपस आपका है लॉ स्टूडेंट्स का, तो नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू शेयर इट विद MBA grads, or MBA students. You have to share it with students from, let's say, journalism courses or other courses. Number one. Number two, because it's in Mumbai, and we all know how little land is there in Mumbai. तो NLUs में जैसे कई कई एकर्स के कैंपस होते हैं, और उन कैंपसेस में यू हैव योर प्ले ग्राउंड्स एंड गार्डन्स एंड बास्केटबॉल कोर्ट्स एंड ह्यूज ऑडिटोरियम्स एंड एवरीथिंग. तो वहाँ तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स मुंबई, इट्स अ मेट्रो सिटी, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ लैंड, एंड ऊपर से ये कॉलेज काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड है, विच इज़ अ गुड थिंग. उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं बताऊंगी अभी. तो बिकॉज द कॉलेज इज सेंट्रली लोकेटेड, तो सिटी के बीच में यार उतना ही लैंड होता है ना. यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ स्पेस इन द मिडल ऑफ द सिटी, राइट? सो दे हैव good large spacious classrooms, they have large libraries, there's an auditorium, there's an auditorium, there are canteens here, you have lobbies and offices, academic buildings, as well as your administrative rooms and administrative offices here. All of that is there. It's a good enough campus, but if you're expecting that you will get a huge playground or you'll get gardens over here like most NLUs, that won't happen obviously. एंड जैसे कि NLU लखनऊ के पास स्विमिंग पूल है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो नहीं होने वाली हैं. ठीक है, सो या बट अदर देन दैट द क्लासरूम्स आर फुली एयर कंडीशनड, यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल इन द क्लासरूम्स. दीज आर ऑल स्मार्ट classrooms, they have LED screens and everything else. So
Yeah, but a lot of NLUs also have that. For example, my National University, NLU Patiala, we had smart classrooms. Every single one of our classroom was a smart classroom, okay? Fully air conditioned and everything, and with projectors and screens, and so we had that. So there will be a lot of NLUs that will also be able to provide you that. In fact, आज के समय में अगर हम 2020-2022 की बात कर रहे हैं, तो आज के समय में ज़्यादातर नए कॉलेजेस और अच्छे कॉलेजेस तुम्हें ये प्रोवाइड करते हैं. सो मूविंग फर्दर, सो आई हैव टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. लोकेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लो. सो दिस इज़ क्वाइट क्लोज टू द रेलवे स्टेशन एंड द जुहू एरिया. बेसिकली जुहू बीच काफ़ी क्लोज है यहाँ पे, and college is on like one of the main roads of the city. So like as soon as you get out of the college, you just like in a vicinity of a few kilometers, you'll find places to shop, to eat, to have fun, and to have entertainment around. So all of that will be available quite close to the college. और क्योंकि कॉलेज सेंट्रली लोकेटेड है, इसके बहुत सारे एकेडमिक फ़ायदे भी हमें मिलने वाले हैं. बहुत सारे हमारे करियर से रिलेटेड बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं, ओनली बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द कॉलेज, विच आई विल टॉक अबाउट इन द एंड. नाउ मूविंग फर्दर, अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो, या ठीक है आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स का कॉलेज नहीं है, यहाँ पे आपको दूसरे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, विच इज़ समटाइम्स अ गुड थिंग ऑल्सो. यू गेट टू इंटरेक्ट विथ मोर पीपल, यू गेट टू लिव इन अ फुल यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ environment where there's a lot of crowd, lot of different departments, and it's a very interdisciplinary approach that is taken, so which is a good thing. Now admission के लिए you have three options. Number one, they conduct their own entrance examination. So this is a good thing. अगर क्लैट की तैयारी तुम्हारी अच्छी नहीं है या क्लैट ख़राब जाता है, तो इनकी वेबसाइट पे जाके इनके एग्ज़ाम के बारे में पता कर लो, विच इज़ NMIMS SLAT, ओके, लॉ एंट्रेंस लॉ एडमिशन टेस्ट. सो ये वाला पेपर तुम दे सकते हो, और इसका सिलेबस पैटर्न सब काफ़ी कुछ अपने क्लैट एलिट वगैरह से ही मैच करेगा. ऑब्वियसली कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, तो you can go through the website, you can check that out, and you can prepare accordingly for that particular paper if you find it easy. Otherwise CLAT में अगर decent score आ रहा है तुम्हारा, तो 4-5 हज़ार रैंक, 6,000 रैंक के आसपास हम इस कॉलेज की उम्मीद कर सकते हैं. CLAT में भाई 25,000 रैंक लाओगे तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा. तो अगर NLU में सिलेक्शन नहीं होता है, देन ऑल्सो यू हैव टू गेट अ गुड रैंक इन क्लैट, जस्ट बॉर्डर वाली रैंक तो चाहिए होगी तुम्हें यहाँ पर. सो योर क्लैट स्कोर कैन ऑल्सो बी अ क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन हियर, एंड द थर्ड क्राइटेरिया कुड बी योर LSAT इंडिया स्कोर. तो जिंदल वगैरह के लिए हम जो एग्जाम देते हैं, वो सेम एग्जाम आपको इस कॉलेज के लिए भी एलिजिबल करता है, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस दैट यू गेट आफ्टर गिविंग LSAT इंडिया. तो यू कैन चूज आप कौन से दो एग्जाम या कोई सा भी एक एग्जाम जो आप दे रहे हो, विच एवर इज whichever you find easier or more manageable. या ये भी हो सकता है दैट इफ़ यू आर ऑलरेडी वेरी सीरियस अबाउट क्लैट, तो आप क्लैट में ही अच्छे स्कोर पे फोकस करो, पुश करो, कि वर्स्ट के सिनेरियो में एटलीस्ट आपकी इतनी तो रैंक आ ही जाए दैट यू गेट KP मेहता स्कूल ऑफ लॉ, राइट. नाउ they obviously, because my audience, the students that I teach, it's usually UG, undergraduate, right? So obviously they have undergraduate degrees, postgraduate degrees, and they also provide doctorate degrees. Lekin we will not talk about LLM and PhD. We'll only talk about BA LLB and BBA LLB, and which is what you guys must be interested in. So like all the other NLUs, they also provide a 5-year integrated LLB degree, and you have the option to either go for a BA LLB degree or a BBA LLB degree. I have mentioned this multiple times earlier as well in many other sessions, that it really does not matter. मतलब दिस इज़ अ ह्यूज मिथ जो तुम लोगों को होता है कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, कि अगर कॉर्पोरेट जॉब्स चाहिए तो BBA डिग्री से आपको ज़्यादा बेटर कॉर्पोरेट जॉब मिल जाएगा, या अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो BA LLB डिग्री से ज़्यादा बेटर चांसेस हैं जुडिशरी के या लिटिगेशन के. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ ऑप्शन, इट्स जस्ट अ few subjects. So BA में you'll be focusing a little bit more on history or sociology, political science, and in BBA you'll be focusing more on, let's say, economics, accounts, and business studies. लेकिन जो आपके second year, third year और fourth, fifth year में जो main law वाले subjects हैं, वो exactly same रहेंगे. तो तुम्हारी डिग्री की जो legal value है, या तुम्हारी डिग्री में जो तुम्हें legal knowledge मिल रहा है, वो 100% same होगा,
राइट. सो देयरफॉर इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस यूनिवर्सिटीज़ को फ्यूचर में, या फिर लॉ फर्म्स को, या फिर आपके जुडिशरी के इंटरव्यू में, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता आपकी BA-LLB डिग्री या BB-LLB डिग्री. हाँ, फ़र्क पड़ता है कि आपने कॉलेज में 5 साल करा क्या. आप 5 साल मज़े मारते रहे, फेल होते रहे क्लासेस में, या यू डिड वर्क towards your education, you worked hard, you got a good score, you did some internships, तुमने अपना CV build करा, तुमने moot court competitions में अलग अलग facilities अलग अलग competitions में participate करा, you were able to win some moot court competitions, you wrote some research papers, you made some amazing projects. These are the things that are going to matter when it comes to your jobs. Alright, we'll talk about all of that as well. So now I've already mentioned that one floor of the building is dedicated to the law faculty, the law department, and obviously it's centrally located in the city and very close to a lot of major landmarks. Now let's move to the infrastructure, which I've said is good enough, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है जितना तुम्हें NLUs में मिलेगा. खासकर अगर हम लैंड साइज या लैंड एरिया की बात करें या ओपन स्पेसेस की बात करें, क्लासरूम्स में तुम्हें कोई कमी फील नहीं होगी, लेकिन ओपन स्पेसेस वाली कमी ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ी फील होगी यहाँ पर. फॉर एग्जांपल यहाँ फॉर एग्जांपल इस कॉलेज में काफ़ी सारे कृति बी मेहता में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं. दे कंडक्ट अ वेरी पॉपुलर कल्चरल फेस्टिवल एज वेल एज सम स्पोर्ट्स फेस्ट एज वेल. लेकिन द ट्रिक इज़ that because they don't have enough space in their institution, they rent spaces out, okay, and then they conduct these festivals in those rented spaces. तो तुम्हें कॉलेज फेस्ट एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा, एंड दीज आर क्वाइट पॉपुलर कॉलेज फेस्ट. टू बी ऑनेस्ट, दे आर वेरी पॉपुलर, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग एंड फन. लेकिन ऑब्वियसली ये कॉलेज के कैंपस में नहीं होंगे, ये रेंटेड आउट कैंपसेस में होंगे, कॉलेज के बाहर किसी जगह लोकेशन पर ऑर्गेनाइज करे गए होंगे. तो ठीक है, इतनी भी बुरी बात नहीं है, बट लाइक the point that I'm trying to say is they have good infrastructure but they don't have a lot of land or open spaces with them. ठीक है, so that is one thing. तो जैसे NLUs में उसी कॉलेज के कैंपस के अंदर ही फैकल्टीज़ के क्वार्टर्स होते हैं, वहीं पर वाइस चांसलर का रेसिडेंस होता है, उधर ही आपके रजिस्ट्रार का रेसिडेंस होता है उसी सेम इनक्लोज्ड एरिया के अंदर. एंड देन यू हैव योर हॉस्टल, एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, सम शॉप, स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ एंड प्ले ग्राउंड्स एंड जिम, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट. तो ये सब इकट्ठा एक ही जगह पर इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स इन मुंबई. तो there's less land space here. लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे मैं बोलूँगी ट्राई एंड वर्क हार्ड दैट यू गेट अ नेशनल यूनिवर्सिटी. ये पॉइंट तो डेफिनेटली NLUs को जाएगा, बिकॉज मैंने वो लाइफ जी है 5 साल अपने नेशनल यूनिवर्सिटी में. सो आई कैन टेल यू देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज़ गोइंग टू मैच इट. मतलब जब तुम उस सेम आउटर बिल्डिंग, यू नो, लाइक दिस इज द कैंपस, for example, this is the main gate of the college and everything is inside here. टीचर्स भी यहीं पर हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ बड़े से स्पोर्ट्स के प्ले ग्राउंड्स हैं, ऑडिटोरियम है, इधर लाइब्रेरी है, देन यहाँ पे यू हैव योर वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार के रेसिडेंसेज. ठीक है, यू हैव शॉप्स एंड सम अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिम, एंड साथ ही साथ छोटा सा क्लिनिक एंड हॉस्पिटल. एंड देन यू हैव योर मेन एकेडमिक बिल्डिंग जहाँ पे तुम्हारी क्लासेस होती है. यू हैव एवरीथिंग देयर. और फिर बीच बीच में जो ओपन स्पेसेस हैं वहाँ पे छोटे छोटे गार्डन्स एंड यू नो अदर एरियाज. सो ये एक अलग इन्वायरमेंट है यार. एवरीबडी, ऑल द 500-600 स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग देयर, दे ऑल लिव टुगेदर एंड इट्स कंपल्सरी टू लिव इनसाइड द कैंपस इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज फ्रॉम द लोकल सिटी, right? So this is a whole different life. You're not going to get this life in lot of private colleges, not just KP Mehta, but in a lot of private colleges you're going to miss out on this. Faculties would be living at some other place and the registrar or the vice chancellor would be some other place, and some of the students will have rented houses, some of the students will live in PGs and hostels in different parts of the city. So you're not going to get this kind of life. And obviously इस life का ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि हमारी लाइब्रेरी रात को 12 बजे तक ओपन होती है, हम 12 बजे तक कैंपस के बाहर घूम सकते हैं. बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल KP मेहता में आपकी लाइब्रेरी शाम को 7 बजे बंद हो जाती है, राइट, बिकॉज एवरीबडी लिव्स सेपरेटली एट डिफरेंट प्लेसेस. तो फिर कैंपस बंद करना होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे. सो थोड़ी सी इस तरह के छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस हैं. तो ऑब्वियसली हम NLU लाइफ से कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड लाइफ.
लेकिन फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं कॉलेज के, ज़्यादातर देखो अच्छे कॉलेजेस में तुम्हें फैकल्टीज़ अच्छे ही मिलेंगे। तो फैकल्टी वाले इशू को हमें डिस्कस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। गुड इनफ फैकल्टीज़, डिसेंट इनफ फैकल्टीज़, तुम्हें कमी फील नहीं होगी। ऑब्वियसली हर किसी को अपने अपने हिसाब से टीचर्स पसंद आते हैं, कितने भी अच्छे फैकल्टीज़ हों कभी ना कभी तुम्हें लगता है कि अरे मुझे समझ नहीं आया या शायद मुझे इनका अप्रोच अच्छा नहीं लगा। तो दैट इज़ समथिंग जिसके बारे में कोई भी इंसान गारंटी नहीं ले सकता, बट येस दे हैव वेरी गुड फैकल्टी मेम्बर्स, हाईली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी मेम्बर्स। लेकिन हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कॉलेज के कैंपस में अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो हॉस्टल होगा वो कैंपस से थोड़ा सा दूर होगा। कॉलेज ने, इस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे दूसरे प्राइवेट हॉस्टल्स के साथ टाई अप करके रखा है ताकि वो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ अच्छे से अकोमोडेट कर दें। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है फिर कॉस्ट की। तो सबसे पहले तो 2 लाख इनकी ट्यूशन फ़ी है। उसके अलावा ठीक है, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ डिसेंट, आई मीन 2 लाख ट्यूशन फ़ी, गुड इनफ। लेकिन प्रॉब्लम ये है बिकॉज इट्स इन मुंबई, आपके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं। तो जितने भी हॉस्टल्स के साथ कॉलेज ने टाई अप करके रखा है, या ऑन एन एवरेज हम अगर हॉस्टल्स की बात करें और साथ ही साथ हमारे खाने की भी बात करें, तो ये जो हॉस्टल्स हैं जो कॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो सारे एसी हॉस्टल्स हैं, एंड इनकी फ़ी 1 साल की 10 या 12 महीने की लगभग 2,30,000 से 3,10,000 तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटीज़ दैट यू गेट इन द हॉस्टल। तो 2 से 3 लाख रुपए तुम्हारा रहने का खर्चा होता है। इसमें खाना कई कई जगहों पे इंक्लूडेड है, किसी किसी में खाना भी इंक्लूडेड नहीं है। तो लेट्स अज्यूम अराउंड 40-50,000 और एडिशनली तुम्हें खाने के भी खर्च करने हैं, एंड देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, लिविंग एक्सपेंसेस, बुक्स, एंड यू नो, और ऑब्वियसली तुम मुंबई में रह रहे हो यार, तो तुम पार्टी करोगे, क्लब्स में जाओगे, तुम रेस्टोरेंट्स में खाओगे, एंड यू नो यू गोइंग टू शॉप इवेंचुअली। सो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं खर्चे का ही पार्ट होती हैं, ठीक है। देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल नीड, एंड देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ नेसेसिटीज दैट यू विल नीड टू स्पेंड योर मनी ऑन। तो हम इतना तो ज़रूर मान के चल सकते हैं, यहाँ पर पूरी तरह से एक सेफ अजम्पशन कर सकते हैं दैट 2 लाख ट्यूशन फी प्लस लेट्स से 2,35,000 लिविंग एक्सपेंसेस एंड 25 और ऐड कर दो फॉर फूड एंड ऑल, that definitely per year you have to spend around 4.5 lakh, 4,50,000 on your tuition and living and eating expenses once you're in Mumbai and once you're in this particular college. So if you have this amount of money per year, because you're going for a 5-year degree, so multiply this by 5, so you get approximately 20 lakh something, right? So if you're going for this particular institution where you have to pay around 20-25 lakh for a 5-year degree, let's compare this with national law universities. So most of the NLUs have their fee somewhere in the range of 2 lakh to around 2,50,000. However, this includes hostel and this includes the mess charges. देर आर वेरी फ्यू NLUs जो थोड़े से हाई एंड पे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2,80,000 के आसपास, लेकिन ज़्यादातर NLUs तुम्हें 3 लाख के नीचे की, आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर अबाउट इट, मोस्ट NLUs विल फॉल इन द ब्रैकेट ऑफ लेस देन 3 लाख, और उस लेस देन 3 लाख में योर ट्यूशन, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, हॉस्टल फी, मेस फी, यू नो ऑलमोस्ट 99% ऑफ द एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड। फिर तुम उस शहर में रह के कितना खर्चा कर रहे हो वो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम कितनी शॉपिंग कर रहे हो, कितना रेस्टोरेंट्स में बाहर खा रहे हो, लेकिन कॉलेज में तुम्हें सारी चीज़ें लगभग 3 लाख के अंदर आराम से मिल रही हैं। तो 1.5-2 लाख का थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है व्हेन यू आर गोइंग टू अ प्राइवेट कॉलेज। और वैसे ये सिर्फ KP मेहता का इशू नहीं है, ये लगभग सारे प्राइवेट कॉलेजेस का आएगा। कोई भी प्राइवेट कॉलेज, चाहे हम निरमा की बात कर लें, सिम्बायोसिस की बात कर लें, तुम्हें लगभग इस रेंज में पड़ेगा, मतलब NLUs से तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। And obviously because it's Mumbai, तो we can't do much about it. The city is quite expensive when it comes to living especially. So yeah, that's one thing. इस पॉइंट पे मैं एक बात बोलूँगी कि पूरी कोशिश करो कि आपको एक नेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाए। इनफैक्ट अब तो मुंबई में भी एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है और आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो, इट्स अ गुड इनफ कॉलेज, जस्ट मेक श्योर दैट योर पेरेंट्स आर एबल टू अफोर्ड इट। मैं पर्सनली इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ
कि एजुकेशन में भी हमें कभी कभी ये देखना चाहिए कि हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो आई थिंक बहुत हाई इन्वेस्टमेंट के लायक भी नहीं है लॉ की डिग्री, टू बी ऑनेस्ट, कि हम 10-10 लाख साल के या 7-7 8-8 लाख साल के हम खर्च करें। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको ये मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट लाइक आई प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू गिव माई ऑनेस्ट ओपिनियन। तो आई थिंक 4.5 लाख इज स्टिल डूएबल, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट पुटिंग बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, है ना। अगर तुम्हारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम अपने सिटी में किसी लोकल कॉलेज में यार 1-8 लाख में पढ़ लो। ज़बरदस्ती उनको फोर्स मत करो कि मैं तो इसी कॉलेज में जाऊंगा, ये तो मेरा ड्रीम कॉलेज है। ड्रीम कॉलेज तो भाई एनएलयू है, और तुम में दम है तो एनएलयू निकाल के बताओ। बट अगर उसके बाद तुम में दम ना बचे ना, तो डोंट जस्ट प्रेशराइज योर पेरेंट्स, ठीक है। ऑब्वियसली तुम्हारे पास एजुकेशनल लोन का ऑप्शन है, काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें भी तुम ट्राई कर सकते हो। स्कॉलरशिप के लिए भी तुम कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अगर जहाँ तक मैं अवेयर हूँ, आई डोंट नो अबाउट एनी स्कॉलरशिप्स, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती, मैं इतना बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता। सो मे बी यू कैन जस्ट गो थ्रू देयर वेबसाइट एंड यू कैन चेक आउट इफ दे ऑफर सम scholarships, so that will be a better option if it works out for you. Now, if you are financially comfortable, if your family is financially comfortable paying this amount of money, then yeah, it's a good enough college, you can definitely go here. कुछ और फायदे बताऊंगी मैं इस कॉलेज के in the next 2 minutes, लेकिन जैसे सारे ही एनएलयूज में अटेंडेंस कंपलसरी है, स्ट्रिक्ट है, उसी तरीके से इस इंस्टीट्यूट में भी अटेंडेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ज़्यादातर एनएलयूज में 70-75% मिनिमम अटेंडेंस चाहिए होती है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टॉक्ड टू द करंट स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं दैट यू नीड अराउंड 80% अटेंडेंस मिनिमम। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, रूल को वो स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, और ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है 80% अटेंडेंस, स्पेशली अगर तुम किसी दूसरे शहर से मुंबई पढ़ने जा रहे हो, तुम होली दिवाली घर जाओगे, कभी घर पे कुछ काम आ गया है, कोई फंक्शन है तो तुम घर जाओगे, या तुम कभी ट्रिप व्रिप पे घूमने जा रहे हो, तो 80% अटेंडेंस मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन आप किसी एनएलयू में भी जाओगे तो भी आपको 70-75% तो मेंटेन करनी ही है। तो ये रियलिटी है इस वक्त सारे लॉ कॉलेजेस की, कि आपको अटेंडेंस कंपलसरी होती है एंड यू हैव टू मेंटेन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ अटेंडेंस। सो दैट इज़ समथिंग यू कैन कीप इन माइंड। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ आपको एनएलयूज में मिलती हैं, जैसे कि बहुत सारे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, बहुत सारी कमिटीज़ सोसाइटीज़ हैं कॉलेज में जो अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं, यू आर गोइंग टू गेट दोज अपॉर्चुनिटी हियर एज वेल। सो आई थिंक दीज फ्यू पॉइंट्स आर ऑल्सो कम्प्लीटली सॉर्टेड। अब थोड़ी सी अच्छी वाली बातें कर लेते हैं। तो अच्छी वाली बातें ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा इस कॉलेज का ये है कि बिकॉज ये मुंबई में है, मुंबई में हाई कोर्ट है, मुंबई में बहुत बड़ी लिटिगेशन की लॉबी है। मतलब लिटिगेशन के लिए मुंबई इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री। लोग, जैसे मेरे कॉलेज की बात कर लूँ मैं, तो एनएलयू पटियाला से बच्चे इंटर्नशिप करने मुंबई जाते हैं भाई। वो अपने वेकेशंस में, छुट्टियों में 1-1 महीने के लिए मुंबई में पीजी वीजी लेके रेंट करके स्पेसेस को वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं। एनएलयू दिल्ली के बच्चे, एनएलयू बैंगलोर के बच्चे मुंबई इंटर्नशिप करने जाते हैं। तो दैट इज़ अ बिग बेनिफिट। अगर तुम परमानेंटली 5 साल उस शहर में रह रहे हो तो तुम बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बना सकते हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के टच में आ सकते हो। और अच्छी बात यह है कि 5th ईयर में केपी मेहता में आपको सिर्फ 2 घंटे ही क्लासेस ज्वाइन करनी होती हैं। तो आपके कॉलेज का जो लास्ट ईयर है वहाँ पे आप फ्री रहते हो इंटर्नशिप्स करने के लिए, जॉब, पार्ट टाइम जॉब्स करने के लिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका सीवी तो स्ट्रांग होगा ऑब्वियसली, बट आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप कॉलेज से ग्रेजुएट होने से पहले ही अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लोगे, क्योंकि आप पूरे 1 साल किसी फर्म में जा रहे हो, इंटर्न कर रहे हो, वो आपका काम देख रहे हैं, आप उनका वर्क एनवायरनमेंट देख रहे हो। और अगर आप अपने पार्टनर्स को, सीनियर्स को, बॉसेस को इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो आपको एक जॉब ऑफर कर देंगे इंस्टेंटली। तो यू गेट दिस वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हियर। तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है, 2 रीज़न से अच्छा है। एक तो कॉलेज का नाम है, कॉलेज की साइड से भी काफ़ी एफर्ट डाला जाता है प्लेसमेंट दिलाने में, एंड दूसरा, बच्चे को पूरा मौका दिया जा रहा है कि भाई तुम अपने इस प्लेसमेंट के लिए जो मेहनत करना चाहते हो वो कर लो। हम तुम्हें फाइनल ईयर में मौका दे रहे हैं, जाओ जाके इंटर्न करो, जॉब ढूंढो, पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, अपनी एक्सपीरियंसेस, कॉन्टैक्ट्स को बिल्ड करो, ताकि तुम खुद अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लो। तो चाहे आप लिटिगेशन के सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप रिटायर्ड जजेस के साथ काम करना चाहते हैं, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और यू वांट टू गो इनटू प्रॉपर कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, whatever you want to do, this फाइनल ईयर जहाँ पे तुम्हें क्लासेस का कंपल्शन नहीं होगा, यू जस्ट हैव टू गो टू क्लासेस फॉर 2 hours एवरी डे, दिस आई थिंक इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है।
तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स और इंटर्नशिप्स में काफ़ी ग्रोथ मिलती है। देन बिकॉज बॉम्बे इज़ अ सिटी जहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए, बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, टियर 1 लॉ फर्म्स हैं, साथ ही साथ बड़े बड़े जजेस, लॉयर्स, सबके चेम्बर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे एनजीओज भी हैं। एंड इवन इफ़ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, ठीक है, तुम्हें अपना स्टार्टअप चालू करना है, तुम्हें रिसर्च में जाना है, तुम्हें टीचिंग में जाना है, तुम्हें अपना खुद का कोई इंस्टीट्यूट लॉन्च करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू डू दैट। यू कैन वर्क विद एनजीओज, you can work with international organizations, because a lot of international organizations also have their offices in Mumbai, right? So opportunities limitless है for sure। and यहाँ पे geography का असर तो आता है compared to a college, let's say which is in Raipur, or compared to a college which is in Bhopal or Lucknow or Patiala, a college which is in Mumbai and which is a decent enough college will be able to give you a lot of opportunities solely based on the city that it's in. So obviously हम city वाले factor को deny नहीं कर सकते। और like I said in the beginning, right, that it's a centrally located college, ये शहर के बीचों बीच में है, तो तुम आराम से 2 घंटे क्लासेस अटेंड करके आसपास जाके मतलब किसी भी लॉ फर्म में काम वाम करके फिर वापस अपने हॉस्टल आ सकते हो शाम को। तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज एनएलयूज के साथ एक प्रॉब्लम है, सारे एनएलयूज कहीं ना कहीं सिटी के थोड़े आउटर में है, चाहे हम एनएलयू बैंगलोर की बात कर ले, चाहे हैदराबाद की बात कर ले, ये सब थोड़ा थोड़ा सिटी के एक्सटीरियर में है, ठीक है। सो एनएलयू भोपाल, एनएलयू रायपुर, गांधीनगर, जोधपुर, सारे एनएलयूज थोड़ा सा सिटी के बाहर हैं। सो यू गेट दिस बेनिफिट हियर कि एटलीस्ट इट्स इन द सिटी, इन द हब हार्ट ऑफ द सिटी। सो जितने भी कमर्शियल ऑफिस, कमर्शियल स्पेसेस में आप जाना चाहते हो, वो सब आपको काफ़ी इजीली एक्सेसिबल होंगे, और यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको काफ़ी इजीली एक्सेसिबल होगा यहाँ पर। एंड दिस इज़ द रीज़न कि कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा होता है। सैलरी डिपेंड करेगी ऑब्वियसली तुम्हारी खुद के पर्सनल स्किल पे। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कॉलेज में BA LLB में 120 बच्चे पढ़ रहे हो और तुम उन 120 बच्चों में टॉप 10 स्टूडेंट्स में आते हो, तो तुम्हारी सैलरी 15 लाख, 20 लाख, 24 लाख हो सकती है स्टार्टिंग पैकेज पर एनम। लेकिन अगर तुम उन 120 में से बॉटम के 20 स्टूडेंट्स में आते हो, तो तुम्हें 20,000 का भी कोई जॉब दे दे वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऑब्वियसली आप पर्सनली कितना एफर्ट डालते हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने आप स्मार्ट हो, आपको लॉ अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। एंड वंस यू गो टू द कॉलेज ना, make a lot of friends with your seniors, make a lot of friends with your faculty members, they will guide you। वो तुम्हें फर्स्ट ईयर से बताएंगे कि क्या क्या करो ताकि you ensure a good job, right? So once you go to the college, चाहे कोई NLU हो या non NLU हो, your seniors, your teachers, they will always guide you कि what are the things that you have to do so that you make sure you know that you land a good placement or you land a high paying job। तो that is a completely separate topic therefore, but हाँ, college तुम्हें decent enough platform देगा जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके तुम एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हो। नाउ ऑब्वियसली अगर आपको लिटिगेशन के लिए जाना है, देन ऑल्सो मुंबई इज़ अ वेरी गुड सिटी, बिकॉज मुंबई हाई कोर्ट काफ़ी पॉपुलर है एंड इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग हाई कोर्ट्स इन द कंट्री एंड दे हैव अ ह्यूज बेस ऑफ लिटिगेशन। तो मुंबई में ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, साथ ही साथ मुंबई हाई कोर्ट है। साथ ही साथ अगर आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है तो आप किसी भी कॉलेज से लॉ की डिग्री लेके जुडिशरी का पेपर तो कभी भी दे सकते हो, तो उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो आप आराम से जुडिशरी की तैयारी भी कर सकते हो। दे हैव अ गुड लाइब्रेरी, काफ़ी सारी बुक्स हैं। बस एक ही डिसएडवांटेज है कि लाइब्रेरी शाम को जल्दी बंद हो जाती है, बट अदर देन दैट आई मीन ऑल इन ऑल इट्स ऑल गुड। तो नाउ व्हाट इज़ माई फाइनल टेक ऑन द कॉलेज? सो माई फाइनल टेक इज़, if you're not getting a top 10 national law university and you really want placement, you feel ki a corporate job is something that you're very interested in and you want to keep it as a strong option, you want to keep want to keep that option open for you। तो अगर टॉप 10 NLU में तुम्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है और तुम्हें एक कॉर्पोरेट जॉब चाहिए ही चाहिए एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट, then you can maybe think about Kriti P. Mehta College of Law, because it's in Mumbai and it's a good college। कॉलेज लाइफ जैसी NLUs में होती है वैसी तो नहीं मिलेगी, बट फिर भी ठीक ठाक कॉलेज लाइफ है, और कॉस्ट थोड़ा सा हाई है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपकी फैमिली इस अमाउंट को अफोर्ड कर सकती है
तो आप आराम से ये डिसीजन ले सकते हो, आप इस कॉलेज में जा सकते हो आंखें बंद करके। लेकिन अगर आपकी फैमिली इस अमाउंट को अफोर्ड नहीं कर सकती है तो फिर आप के पास दूसरे बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए, या फिर आप फिर बॉटम एनएलयूज में भी जा सकते हो। इसके साथ साथ व्हेन आई से टॉप 10 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, आई एक्चुअली मीन टॉप 12 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। तो मतलब सारे कॉलेजेस एनएलयूज ऐसे नहीं होते जो आपको अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन बहुत सारे लो रैंकिंग एनएलयूज भी ऐसे हैं जो अच्छा प्लेसमेंट देने लगे हैं। फॉर एग्जांपल एनएलयू उड़ीसा, वैसे तो हम वो टॉप 10 की बॉर्डर में ही आता है, आप उसको 10th रैंक भी दे सकते हो, आप उसको 11th रैंक भी दे सकते हो, लेकिन पीपल आर गेटिंग वेरी गुड प्लेसमेंट्स फ्रॉम एनएलयू उड़ीसा। नॉट एवरीबडी बट द टॉप 20-25 स्टूडेंट्स, दे आर गेटिंग वेरी गुड प्लेसमेंट्स। सो नाउ सिमिलरली एनएलयू मुंबई, तो एज सच एनएलयू मुंबई बहुत नया है, अभी तो उनका फर्स्ट बैच भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, लेकिन बिकॉज वो मुंबई में है और वहाँ पे आप एनएलयू के टैग के साथ साथ मुंबई की सिटी का फ़ायदा भी उठा सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें केपी मेहता में आपको मिल रही हैं वो सारी चीज़ें आपको एनएलयू मुंबई में भी मिलेंगी। तो ऐसे सिनारियो में चाहे एनएलयू मुंबई एक लो रैंकिंग एनएलयू है, बट यू कैन गो देयर, राइट। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं हमारा कॉलेज। तो आई होप मैंने आज की क्लास में जितनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी है, ये फैक्टर्स आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देंगे जिसके बेसिस पे आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप अपना डिसीजन ले पाओगे। So that is all guys, and like I said, do let me know if you want us to discuss about some other major colleges. Obviously we're going to talk about major colleges जिनको ज़्यादातर लोग जानते हो, जिनके बारे में डिस्कस करने में कोई फ़ायदा हो, right? So yeah, do let me know if you want to talk about other major colleges, and also check out the other videos that we've posted on the channel, because हमने कई सारे colleges already cover कर दिए हैं, कई सारे topics, कई सारे controversial legal issues भी हमने already cover करे हैं channel पे, and I think that's going to be really helpful for you guys. And yeah, this is going to be the end of the session. Make sure you subscribe to the channel, and bye bye everyone.